Hello friends, how are you? How are your studies going on? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. So today I am not going to discuss on theories, but today I will take up a case study of Dabur India. In this, I will explain you how this distribution management system had challenges and how did they solve it, and what else is still required to improve. So, Dabur India, let us know about this. What is Dabur India? Introduction. Dabur India, one of the largest FMCG companies in India, is renowned for its natural and Ayurvedic product range. The company faced challenges in managing its vast distribution network spanning rural and urban markets. With over 6 million retail outlets to serve and a presence in over 120 countries, Dabur required an efficient distribution strategy to maintain its market leadership. See, Dabur India, everyone knows it is an FMCG company of India. It is a giant company. That also, it is very old company. We all are using its product. It is not that some particular type of people are only using. Dabur India का प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है. तो इसके जो यूजर हैं वो सभी लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं. तो इनके रिटेलर भी बहुत ज्यादा हैं. तो कितना है? 6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स. 6 मिलियन यानी 60 लाख रिटेल आउटलेट, उससे भी ज्यादा है. और 120 से ज्यादा कंट्री में ये काम करती है, बेचती है अपने प्रोडक्ट को. तो कितना वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यू कैन इमेजिन इट. तो कहीं भी किसी भी चेन में, अगर किसी भी कड़ी में कहीं पे ये प्रोडक्ट ना हो, तो क्या होगा? वो सेल किसके पास जाएगा? कंपटीटर के पास चला जाएगा. तो हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे? डाबर इंडिया को एक बहुत ही इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर, दे विल बी लूजिंग ह्यूज सेल. तो मार्केट लीडरशिप चाहिए, तो इनके लिए लॉजिस्टिक्स का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत ही अच्छा नेटवर्क होना चाहिए. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, they faced rather? First was complex distribution network. As I told you, Dower operated through a multi-tier distribution system, including distributors, wholesalers, and retailers. The complexity often led to inefficiency. If so many tiers are there, huh? See, there are distributor, then below that wholesaler, then there are retailers, then it comes to customer. What will happen? If anybody is loose, anybody is inefficient in this chain, the whole system will collapse, or the whole system will be lethargic or will be very slow. तो उसके स्लो होने से क्या होगा? कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होगा. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट हैज टू बी वेरी मच एफिशिएंट. तो पहला चैलेंज ये था. दूसरा चैलेंज क्या था? रूरल पेनिट्रेशन. डाबर ने महसूस किया कि इनका रूरल पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं है. सर्विंग रूरल एरियाज posed logistical challenges due to poor infrastructure and higher cost. रूरल एरिया में क्या है? हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है. फ्रीक्वेंसी ऑफ vehicles going to the rural area is less, so they will charge you more. So this was another challenge, rural penetration. Third was demand supply imbalance. If you do not supply as per the demand, what will happen? आपको सेल लॉस होगा, होगा ना. जो हमें सप्लाई करना है कितना, जितना डिमांड है. ज्यादा सप्लाई करोगे तो क्या ओवर स्टॉक होगा, रिटेलर को लॉस होगा, उनका पैसा लगा है. और कम सप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा. क्यों? क्योंकि आपका सेल डाउन हो गया. जहां जरूरत था वहां भी आप पहुंचा नहीं पाए. तो variability in demand across regions led to overstocking in some areas and stock outs in others. Limited visibility, lack of real-time data from distributors and retailers made it difficult to track inventory and sales accurately. आजकल रियल टाइम डेटा चाहिए.
अभी किसी रिटेलर के पास कितना स्टॉक है, वो कितना दिन चलेगा? कंप्यूटर should tell me everything. Yes, in these retailers, this much stock is there. They need this much product, this much quantity on this date. उनका कंजम्पशन रेट मालूम है, उनका पैटर्न मालूम है कि कितना कंजम्पशन होता है, ये स्टॉक कितना दिन चलेगा, मिनिमम लीड टाइम क्या है, वहां पहुंचने में प्रोडक्ट को कितना समय लगता है। ऑल दिस कैलकुलेशंस आर डन एंड अकॉर्डिंगली यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, देन ओनली you will be making your product available in time. The limited visibility was another challenge. So, what they did, what solutions they implemented? Adoption of technology, पहला चीज टेक्नोलॉजी। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाबर implemented SAP's enterprise resource planning ERP system to streamline operations and provide real-time data on inventory, sales and distribution. इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूटिलाइज किया, सैप, वो ईआरपी जिसको बोलते हैं। इससे रियल टाइम डेटा पता चला कि कहाँ पे क्या स्टॉक है, कितना स्टॉक है, कब खत्म होगा, कितना दिन कंजम्पशन पैटर्न है, उस हिसाब से लीड टाइम भी पहुंचने में कितना लगता है और उधर कितना खर्च होने में टाइम लगेगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू स्टार्टेड डूइंग मिनिमम स्टॉक लेवल, उस स्टॉक लेवल को मेंटेन करना है। व्हेन द स्टॉक शुड गो एंड व्हाट आइटम व्हाट क्वांटिटी, ऑल दिस कंप्यूटर विल टेल एंड इंस्ट्रक्ट द वेयर हाउस, दे विल बी सप्लाइंग। Accordingly, you have to follow the payment also. बिना पैसा का नहीं देना है। Then, direct distribution model. To improve rural penetration, Dabur introduced a direct distribution model by partnering with rural distributors. This eliminated intermediaries and reduced delivery time. अब पूरा का पूरा आप डिपेंडेंट अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर पे रहोगे और उन्हें फायदा नजर आ रहा है सिर्फ अर्बन रिटेलर से या होलसेलर से, तो वो दे विल नॉट टेक केयर ऑफ द रूरल एरिया, रूरल रिटेलर। वहाँ खर्च ज़्यादा, कोई गाड़ी जाना नहीं चाहता, और फिर वो वहाँ से फॉलो अप करना कठिन, कौन उतना दूरी मेंटेन करे, कौन इतना मेहनत करे। तो वो जहाँ पे इजी बिजनेस हो रहा है वही वो केयर करेंगे। तो व्हाट डाबर डिड, दे मेड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द रूरल एरियाज, वहाँ पार्टनरशिप किया और उनको ये जॉब दिया। अब उनका एरिया ही जब रूरल एरिया है तो दे विल टेक केयर ऑफ देम, उनका ब्रेड एंड बटर वहीं से आना है। तो इससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक क्या होता है? आपने साइकिल का चक्का देखा है, तो वो जिस पर टायर होता है उसको हब कहते हैं, और जो स्पोक्स, जो रॉड्स पतले पतले हैं ना मेटल के, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रांग बनाते हैं चक्के को। जितना ज्यादा स्पोक उतना स्ट्रांग आपका चक्का। तो इसी तरह से द कंपनी एस्टैब्लिश रीजनल हब्स कनेक्टेड टू स्मॉलर स्पोक्स फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मॉडल ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। जितना ज्यादा स्पोक्स बनाए, जितने ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर रूरल एरियाज में बनाए, उतना वहां पे रिटेलर्स को इजी हुआ काम करना और उनको समय पे मिलता रहा। तो इससे रूरल कस्टमर को बेनिफिट्स हुआ और हमारा सेल बढ़ा। देन फोकस ऑन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स तो अभी नीड ऑफ द आवर है। आज के डेट में बिना डेटा एनालिटिक्स के कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। डाबर यूटिलाइज डेटा एनालिटिक्स टू फोरकास्ट डिमांड, आइडेंटिफाई फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स एंड एड्रेस सप्लाई चेन गैप्स। जो हमारा वेरिएबिलिटी था ना, कि इतना सप्लाई इतना डिमांड, जो कभी ज़्यादा कहीं कम, सो दैट गैप वाज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स। वैन ऑपरेशंस फॉर रूरल मार्केट्स, जो गांव में जो हमारे अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जाते थे, तो उसको मिनिमाइज करने, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, इन्होंने अपना वैन सिस्टम रखा। डाबर लॉन्च्ड ए फ्लीट ऑफ वैन्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज, इंश्योरिंग लास्ट माइल डिलीवरी इवन इन रिमोट रीजन। लास्ट माइल डिलीवरी इज व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स जो रिमोटेस्ट हमारा कस्टमर है, रिमोटेस्ट रिटेलर है, वहां तक हम अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सारे कस्टमरों को कैसे कैटर कर पाओगे। तो व्हाट रिजल्ट दिस सा? इम्प्रूव्ड मार्केट रीच। डाबर एक्सपैंडेड इज रूरल रीच फ्रॉम 14,000 to over 30,000 villages
within a few years, capturing a larger share of the rural market. तो इसका रिजल्ट भी नहीं दिखा। 14,000 विलेजेस में कैटर कर रहे थे, वो 30,000 सीधा हो गया, डबल से भी ज्यादा। कॉस्ट सेविंग, हब एंड स्पोक मॉडल एंड ईआरपी सिस्टम significantly reduced ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग हो गया। तो हब एंड स्पोक मॉडल भी बहुत काम आया, उससे भी रिजल्ट अच्छा आया। इनहेंस्ड इफिशिएंसी, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग इम्प्रूव्ड, स्टॉक अवेलेबिलिटी। तो जो हमें रियल टाइम डेटा पता चला ना ईआरपी से, तो उससे क्या हुआ, हमने रिड्यूस्ड स्टॉक आउट बाय 30%। स्टॉक आउट ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। अगर स्टॉक आउट है तो क्या हो गया कि हमारे जो कस्टमर है वो किसी कंपटीटर के पास जा रहा है। अगर वो मांग रहा है आपका प्रोडक्ट डाबर हनी एंड यू डोंट हैव, देन दे विल गो टू पतंजलि हनी। वो हमारे लिए नहीं वेट करेगा ना। ऑल आर गुड, नो प्रोडक्ट इज बैड नाउ इट इज। तो स्ट्रॉन्गर रिटेलर रिलेशनशिप, इससे क्या हुआ, डायरेक्ट एंगेजमेंट विथ रूरल रिटेलर्स बिल्ट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इंश्योरिंग बेटर प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन रूरल मार्केट। जब आपका अवेलेबिलिटी होगा, प्रोडक्ट टाइम पे मिलेगा, तो क्या होगा, रिटेलर को बिजनेस अच्छा होगा, और आपकी बातें सुनेंगे, आपके प्रति लॉयल होंगे, और आपके प्रति ट्रस्ट भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया आपका रिटेलर के साथ। देन रेवेन्यू ग्रोथ, Tower witnessed a 20% increase in sales from rural markets, which now contribute to over 45% of its total revenue. 20% का इंक्रीज, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग सेल्स में, और स्पेशली रूरल मार्केट के लिए। रूरल मार्केट को फोकस किया था तो वहां पे 20% का ग्रोथ हो गया, और 45% टोटल रेवेन्यू, इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। So what are the takeaways? Rural focus, adapting distribution model to cater to rural market is essential in a diverse country like India. इंडिया में क्या है, मोर ऑफ द प्लेसेस इट इज रूरल ओनली, है ना। अर्बन इज ओनली few places, no, metro cities are there, big cities are there, capital cities are there, districts are there. After that, all are villages or some talukas. सो रूरल फोकस वाज देयर। अब वो बहुत बड़ा मार्केट था, इसी के कारण 45% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, रियल टाइम डेटा सिस्टम इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस इनएफिशिएंसी। तो टेक्नोलॉजी को जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, उसे उन्होंने अडॉप्ट किया, इससे इन्हें इफिशिएंसी में काफी बढ़ोतरी हुई। द efficiency in logistics, efficiency in supplying the product, it was improved to a great extent. Flexible distribution model, companies need a mix of centralized and decentralized approaches to optimize cost and serve diverse markets effectively. So it was centralized and decentralized. Both approach was there. It was not very much strict that only through this way only we will work. See, they utilize this van facility also to dispatch the products to the rural area. It was not that through only urban distributor they will sell it, they will send the products to the retailers. So it was very much flexible, or it was not that only through the urban we will go to the different, so many tires are there, so every tire you have to cover up, then only you can reach to the remotest point. It is not like that. They directly delivered the product. Last mile connectivity, innovative solution like van operations ensure reach in remote areas. So last mile connectivity is also important. We have to think about all the customers, then only you can have the leadership. What are the discussion questions? What did you learn here? How can Dawa sustain its competitive edge in distribution? अब आपको ये बताना है कि ये कंपटीशन में आगे कैसे निकलेगा। ठीक है, आपने कर तो लिया, लेकिन आर यू आर यू competing with the HUL, Hindustan Unilever, Patanjali and all others?
So what you should do? First thing you should continue this tempo, isn't it? Whatever you have adopted, you have to continue it. You should not go back. First of all, this thing. Then what is that? Still more efficiency is required. You have found only rural. You have done rural area focus. Focus on rural area you have done. Some more areas may be there, like northeast, where geographic condition is very difficult to reach, where desert area, forest area. So all this you have to think about it. So how are you doing right now? Can you improve in that? Should you change some retailer, dealers, distributor, anything? Any any link is not working properly, you have to change that. ये बिल्कुल क्लियर है, प्रोफेशनल लाइफ में ही होता है. यू कैनॉट हैव दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनी ऑफ द लिंक. अगर उतना सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, आपको बिजनेस से कॉम्प्रोमाइज करना होगा. व्हाट एडिशनल टेक्नोलॉजी कुड डावर एक्सप्लोर टू फर्दर इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी? और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे कैन अडॉप्ट. ऑलरेडी दे आर डूइंग ईआरपी. सप्लाई चेन मैनेजमेंट से और भी सारे रिटेलर, डीलर्स और होलसेलर एंड द कंपनी वेयर हाउस, एवरीवन इज कनेक्टेड. यू कैन get the real time data correctly through that. And you can also have lot many this softwares are there through which you can get the data on the mobile itself. Some more technology refinement is always required. Every day you need to know who is doing better and who is going back. सो किसका इम्प्रूवमेंट है, किसका नहीं है, वो इट शुड कम टू योर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन. तो यू विल बी नोइंग व्हाट you need to do improvement for the efficiency. How can similar strategies be adopted by smaller FMCG companies in India? See, all that you cannot adopt. Suppose your company is only serving in Delhi NCR. If you apply all this kind of technology and this strategy of Dabur, you will go to hell. है कि नहीं? इतना खर्च कर दो जो कि तुम्हें उतना रिटर्न है नहीं. तो part of that, like van operations, it was very good. Van operations. Then technology in that also, part of that, small technologies are there which you can utilize for supply chain. Huh? And depending upon your kind of customers, what kind of customers you have, all the people are needing your product, or particular type of companies, particular type of customer only are there. What market segment you are addressing? Based on that, you can utilize technology, you can utilize the strategy to get the better efficiency. So this Dabur India, this case, why I explained here, this is very real problem, and this with this you can understand how the companies are working and addressing their problem. Problems are there, always there. You cannot say that without problem any company is running. Always refinement and improvement is required. The case study will open your eyes in that direction. How was this lesson? Did you like it? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपना विचार, अपने सजेशंस जरूर जरूर लिखिए, ताकि मैं अगले लेसन में उसको कवर कर सकूं. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन आई विल कम विथ अ न्यू लेसन फॉर यू. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. थैंक यू.